Hello, viewers. I am Mr. Dilip Kumar Pal, stands before you with an audio video relating to affirmative action policies for women. In Odia it is ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାକି ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର 4th ପେପର, ଯାହାକି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋସେସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପର ଦୁଇଟା ଅଂଶ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସରକାର ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯାହାର ଉପକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଇବେ ଏବଂ ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରକାର ସେବା। ଅନ୍ୟକୁ ସେବା କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି। ଯଦି ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଏକତ୍ର ହେବେ ଜୀବନ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ପୁରୁଷମାନେ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ପୁରୁଷମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ମହିଳାମାନେ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସମାଜ ଆନୁପାତିକ ଭାବେ ପ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅନୁପାତରେ ପ୍ରାୟ ମହିଳା ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ପୁରୁଷ ଉନ୍ନତି କରିବେ ମହିଳା ଉନ୍ନତି କରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜର 50% ଉନ୍ନତି କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମହିଳା ଉନ୍ନତି କରିବେ ପୁରୁଷ ଉନ୍ନତି କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜର 50% ଉନ୍ନତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମାଜରେ, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପରି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ମହିଳାମାନେ ଉନ୍ନତି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଠନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ। ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ବା ଆସ୍ତିବାଚକ ପଦକ୍ଷେପର ଅର୍ଥ ହେଲା ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଠନମୂଳକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଥାଏ। ତା ଆମେ ବୁଝିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଭାରତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନର ଗଠନ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି 1992 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି କମିଶନର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 6ରୁ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, 5 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହି ମହିଳା କମିଶନରେ ଜଣେ ସଚିବ ରହିଥାନ୍ତି, ସେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଏବଂ ଏହି ସଚିବ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ଆୟୋଗର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ କୌଣସି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ। ତାହେଲେ ଏହା ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନର ଗଠନ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏହି ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଇଟ୍ ଏକ୍ସାମିନ୍ସ
and investigates all matters relating to legal and constitutional safeguards provide for women. महिला ए कमिशन प्रथम कार्य है ए कमिशन निरीक्षण करि थाए जे महिला मानक पई जो सांविधानिक एवं न्यायिक सुरक्षा गुड़िक रही अछि ता द्वारा प्रकृति रे महिला माने लाभवान पाउचंती ना नहीं जो संविधान एवं न्यायिक पदक्षेप गुड़िक महिला मानक सुरक्षा पई प्रणयन करा जाय अछि ता प्रकृति रे महिला मानक लाभ देउछि ना नहीं. नंबर 2, to present an annual report and other reports relating to safeguards for women to central government. जेहेतु केंद्र सरकार जातीय महिला कमिशन को नियुक्त करि थांती प्रत्येक वर्ष ए महिला कमिशन एक वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रणयन करि थाए केंद्र सरकार को प्रदान करि थाए जे सांविधानिक पदक्षेप एवं न्यायिक पदक्षेप जहाँ कि महिला मानकर सुरक्षा पई प्रणयन करा जाय अछि ता केतेकांश रे लाभवान हेउछि. 3, to make recommendations for making safeguards for more effective and improved condition for of women. एवं ए महिला कमिशन अन्य कार्य हैला महिला मानकर पई जो आईन गुड़िक संविधान रे रही अछि ता किपरि अधिक कार्यक्षम हो ता किपरि अधिक सुंदर भाव कार्य करिवो से केंद्र सरकार को संविधान संशोधन पाई प्रस्ताव देता है. अर्थात महिला मानकर आईन किपरि अनेकांश सुचारू रूपे कार्य करिवो ताको संशोधन करिया पाई ए केंद्र सरकार को ए कमिशन प्रस्ताव देता है. 4 नंबर, टू मेक सजेशन फॉर अमेंडमेंट इन एनी लॉ रिलेटेड टू वुमेन. महिला मानकर संबंधी आईन को संशोधन करिया पाई यह केंद्र सरकार को प्रस्ताव दे पारे. 5, टू टेक अप ऑल केसेस ऑफ वायोलेशन ऑफ लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू वुमेन. महिला मानक संबंधी जदि कोनोसी न्यायिक पदक्षेप बा संविधानिक आईन जदि किछि बाधा प्राप्त होबोछि बा संविधानिक आईन बा न्यायिक आईन जहाँ कि महिला मानक सुरक्षा पई प्रचुर्य जदि कार्य करू नाही ताले ए कमिशन कार्य हैला ताकू अनुसंधान करबा. 5, नंबर, टू टेक अप मैटर रिलेटिंग टू डेप्रिवेशन ऑफ वुमेन राइट्स. यदि कौनसी क्षेत्र में महिला माने निजर अधिकार वंचित होउचंती ए महिला कमिशन कार्य हैला ताकू तदंत करबा. अर्थात ए महिला कमिशन कार्य हैला महिला माने निजर अधिकार रु किपरि वंचित हेबे नाही. 7 नंबर, टू टेक अप मैटर रिलेटिंग टू नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड लॉज रिलेटिंग टू इक्वालिटी ऑफ वुमेन इन सोसाइटी. अर्थात यार आउ अन्य कार्य हैला महिला मानकर संबंधी आईन गुड़िक जदि कार्यकारी हेउ नाही ताहाको निरीक्षण करिबा एवं महिला मानक समाज रे पुरुष मानक सहित समान करिया पई जो आईन रही अछि ताहा कार्य जदि करू नाही ताहाको मध्ये अनुध्यान करिबा. 8 नंबर, टू स्टडीज प्रोविजन रिलेटिंग टू गिव रिलीफ टू वुमेन एंड इट इन्वेस्टिगेट्स क्राइम अगेंस्ट वुमेन. या अनुसंधान करिथाय जे जो क्षेत्र रे महिला मानक को किछि सुजोग प्रदान करियो कथा से माने से क्षेत्र रे सुजोग पाउचंती कि नाही. ए सहित इट इन्वेस्टिगेट क्राइम अगेंस्ट वुमेन. महिला मानकर विरुद्ध रे कोनोसी अपराधिक कार्यकलाप जति होउची ताक मध्ये यह अनुसंधान करिथाय. 9 नंबर, इट मॉनिटर एंड इवैल्यूएट प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वुमेन. महिला माने प्रगति करूचंती ना नाही यह निरीक्षण करिथाय. परिशेष रे टू इंस्पेक्ट जेल, रिमांड हाउसेस एंड वुमेन इंस्टीट्यूशंस फॉर देयर कंडीशन. महिला कैदी जोटा रोचंती बा महिला अपराधी माने जोटा रोचंती ता इंग्रजी को रिमांड हाउसेस एवं महिला शिक्षानुष्ठान गुड़ी करे महिला मानकर स्थिति यह अनुध्यान करिता. यह है महिला मानकर प्रगति पाई भारतीय जातीय महिला कमिशन रो कार्य.
कि बर्तमान देखा भारत सरकार महिला मान कि प्रकार पदक्षेप ग्रहण कर पॉइंट 1 इन अर्बन एंड रूरल गवर्नमेंट्स सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन सहरांचल सरकार ग्रामांचल सरकार रे महिला मान स्थान संरक्षण करा नंबर 2 इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन शिक्षानुष्ठान सरकारी शिक्षानुष्ठान गुड़िक महिला मान स्थान संरक्षण करा इन गवर्नमेंट जॉब्स सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन सरकारी चाकरी में महिला मान स्थान संरक्षण करा इन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस गर्ल्स हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम फीस सरकारी शिक्षानुष्ठान गुड़िक महिला मान देयरु मुक्त कर दे आर एग्जम्प्टेड फीस से माने महिला माने विभिन्न प्रकार देय देउ नाहंती से मानकु देयरु मुक्त करा 5 नंबर इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन सरकारी यानवाहन बस सरकारी बस एवं ट्रेन रे महिला मान पई स्थान संरक्षण करा जाउछि 6 नंबर लॉज हैव बीन मेड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन इन वर्किंग प्लेस एंड इट्स फैसिलिटीज कार्यक्षेत्र रे महिला मानक प्रति जेपरि भेदभाव हेबो नाही महिला माने जेपरि कार्यक्षेत्र रे भेदभाव सम्मुखीन हेबे नाही एवं पुरुष मानक परि समस्त सुविधा पाइबे से परिप्रेक्षी में भारत सरकार आईन करिसंती पर देखिबा महिला मानक पई केंद्र सरकार अनेक योजना करिसंती गोटे हैला साबला ए योजना कार्यकारी हैला 2010 रु 2011 एवं ए साबला योजना अनुसार एडोलेसेंट गर्ल्स अर्थात बाल्यावस्थारू युवावस्था बाल्यावस्थारू युवावस्था मध्य जो समय रहा 11 रु 18 वर्ष झील मान सुषम खाद्य प्रदान कर स्वास्थ्य पदक्षेप नहीं साबला योजनाटी भारत में 205 जिले 205 जिले में कार्यकारी हो केंद्र सरकार 100% सहायता अनेक योजना है सुधार ये सुधार योजना अनुसार जो महिला माने जेल रु आसिला परे से माने कुआडे जाई पारु नांती बा बेसियाळरू से मानकु मुक्ति कला परे से मानकु थैतान करिबा एवं जो महिला मानकु विभिन्न प्रकार एड्स बा एचआईवी रोग द्वारा परिवार से ग्रहण करू नांती से मानकु ए सुधार योजना अनुसार आश्रय दिया पदक्षेप ग्रहण करा अर्थात जो महिला माने रोगाक्रांत एचआईवी और एड्स द्वारा परिवार से ग्रहण करू ना बा जो महिला माने जेल रु आसिला परे तांको नया किए ना बा जो महिला माने बेसियाळरू आसिला परे तांको थैतान करा जाई पारु ना तो ये सब महिला मानकु सुधार योजना अनुसार थैतान करा जाउछि। प्रथम देखिबा महिला मानक पई सरकार अनेक आईन प्रणयन करछन। प्रथम आईन 1961 मसीह रे डाउरी यौतुक विरोधी आईन गृहीत करा जाउछि। ता अनुसार यौतुक निषेध करा जाउछि। यह 1961 मसीह रे गृहीत होइतिला एवं 1986 मसीह रे ताको पुनर्बार ताको संशोधन करा जाउछि। या परे सती प्रोहिबिशन एक्ट 1987 मसीह रे सती प्रथा निषेध करा जाउछि। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बाल्य विवाह प्रथा 2006 मसीह निषेध करा जाउछि। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस घर हिंसा महिला माननकु मुक्ति करिया पई 2006 मसीह रे एक आईन प्रणयन करा जाउछि। 2005 मसीह रे एक आईन प्रणयन करा जाउछि। सेक्सुअल हारासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्किंग प्लेस कार्य क्षेत्र रे महिला माननकु विभिन्न प्रकार सुरक्षा प्रदान पाई कार्य क्षेत्र में महिला माननकु सुरक्षा प्रदान करिया पई मध्य 2012 मसीह रे एक आईन प्रणयन करा जाउछि। तेणु आमे एही वीडियो रे देखिले महिला मानकर गठनमूलक प्रगति पाई केउं सकारात्मक पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। सकारात्मक पदक्षेप अर्थ है महिला मान विकास पाई केउं गठनमूलक पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि। या पर आमे देखिले सरकार भारत सरकार महिला मानकर विकास पाई के प्रकार पदक्षेप ग्रहण करछन। तेणु मो विश्वास जे हमर +2 सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर छात्र छात्री माने ए वीडियो रो सदुपयोग करिवे। थैंक यू।
पुनर्बार आम अन्य एक भिडियो मिलते हैं से सब पर्यंत गुड बाय।